KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samruddhi Naulakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. And itna hi nahi, we are going to practice previous year questions, mock questions and going to discuss expected questions as well. तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अलॉन्ग विद दैट, अभी तक अगर आप हमारी केपी क्लास कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर केपी क्लास कम्युनिटी. डेली क्विजेस, लेटेस्ट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए आप सबसे पहले अपडेटेड रहें. So इन सभी lectures की study notes and PDFs is available on our app, which is KP Class Exam Prep app. And for iOS users, we have Class Plus app, so you can download it. आपने credentials डालिए, login करिए. Free material section में आपको क्या मिलेगा? आपको हमारे सारे study notes, इन सभी lectures की study notes will be available absolutely free of cost. And if you go in the test section, बोर्ड्स के रिगार्डिंग जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं इन हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, वो सारे ही सैम्पल पेपर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे ऐप पे. So we have completed the entire theme 1 of history. So as you can see, then in this lecture we are going to start peasants, zamindars and states. And welcome to day 15. तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड दो पार्ट्स में खत्म करेंगे. Before that, I have a great news for all of you that we at KP Classes have launched our Udan batches for your CUT preparation. So आप इन courses का पार्ट बन सकते हैं. And these courses are very cost effective. In just 5,000 you can complete your entire CUT preparation along with domains, language and general test. And अगर ये सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, एंड इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ जीटी की प्रिपरेशन करनी है, सो दैट इज आवर सारथी बैच इन जस्ट 3,000. And these are the study material books that you will be getting from our side. And as you can see, सारे subjects में available है, and these books have more than 1,200 MCQs. तो एग्जाम देने से पहले आप 1200 MCQs प्रैक्टिस करके जाएंगे along with previous year questions. GT, language, psych, socio, economics, pol science, business studies, accountancy, सारे ही subjects में ये books आपको available हो सकती हैं. तो let's begin with peasants, zamindars in the states. तो कुछ sources हैं जिससे हमें agrarian society के बारे में पता चलता है of 16th and the 17th century, जैसे chronicles. Chronicles are the those books जो writers लिखते थे about the administration, about the court. Fine. तो कुछ chronicles और documents मुगल कोर्ट से हमें पता चलता है. One of the famous court chronicle is the N.A. अकबरी. अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन था अबुल फजल. उन्होंने N.A. अकबरी क्या करी थी, लिखी थी. इट इज कोर्ट क्रॉनिकल एंड ये मेंशन करता है अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू इंश्योर कल्टीवेशन, कि स्टेट अपने एरिया में कैसे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहा है एंड कल्टीवेशन कर रहा है. Similarly, to enable the collection of revenue by the agencies of the state and to regulate the relationship between the states and the rural magnates and the zamindars. So, जितने भी peasants हैं, zamindars हैं and state है, इनका relationship कैसा था and क्या specific roles थे जो कौन-कौन सी agencies perform करते थे. तो दूसरा, डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से पता चलते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस होता था. थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स जो हमें एग्रेरियन रिलेशंस इन द ईस्टर्न इंडिया के बारे में बताते हैं. एंड ऑल दीज सोर्सेज रिकॉर्ड द इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पेजेंट्स, जमींदार इन द स्टेट. इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि व्हाट वर द एरियाज ऑफ टसल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. जमींदार, स्टेट्स एंड स्टेट पेजेंट्स के बीच में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी. तो ऐसे ही इंसाइट मिलता है हमें पेजेंट्स परसेप्शन एंड देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फेयरनेस ऑफ द स्टेट. बिकॉज स्टेट व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू पुट प्रेशर ऑन द पेजेंट्स एंड टैक्स इतना ज्यादा था, वेदर हार्वेस्ट हुआ या नहीं हुआ, उनको टैक्स पे करना ही करना था.
तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स, इन सारे सोर्सेस से हमें पता चलता है। अब पेजेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करें तो ये टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इन योर सीयूईटी एज वेल एज इन योर बोर्ड्स। तो इंडो पर्शियन सोर्स से हमें पता चलता है पेजेंट्स को रैयत या मुजारियन बोला जाता था। एमसीक्यू 1 मार्कर। वी ऑल्सो एनकाउंटर द टर्म्स एज किसान, उनको किसान या आसमी भी बोला जाता था। So sources of 17th century refer two kinds of peasants, खुद खास्ता and पाही खास्ता. खुद खास्ता were the residents of the village in which they held their lands, and पाही खास्ता were the non-resident cultivators. So ये straight away 2 marks में पूछा जा सकता है कि differentiate between खुदा खास्ता and पाही खास्ता. So who belong to some other village but cultivated land elsewhere on the contractive basis. And people used to become that pahi khasta either out of the choice, या तो उनको बोला जाता था कि ये वॉलंटरी करो या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता था. So when the terms of the revenue in the distant village were more favorable, peasants moved out of the village and sometimes they were forced to convert because famine जैसी conditions आ गई, इस वजह से उनको convert किया गया. नेक्स्ट बात करते हैं possessions. ऐसी कौन सी चीज है जो पेजेंट्स के पास होती थी? सो एवरेज पेजेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उनके पास बुल्स होता था या फिर एक प्लॉ जिससे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं. अदर पोजेस 2 pairs of bulls और 2 plows. मोस्ट पोजेस इवन लेस. गुजरात की बात करें, वहां पे लैंड होता था करीबन 6 एकड़ का लैंड, एंड ये जिसके पास ये होता है उसको एक एफिलेंट क्लास का, एफिलेंट पेजेंट का दर्जा दिया गया. बंगाल की बात करें, 5 acres was the upper limit of an average peasant farm and cultivation was based on the principle of individual ownership. कि if you own the land, then only you can cultivate it. अब बात करेंगे irrigation technology used by the peasants. So ये irrigation and technology 3 factors contributed to the expansion of agriculture. आइए देखते हैं. सबसे पहला land, labor and mobility of the peasant. So land, availability of land is the first and the foremost. उसके बाद labor, उस land पे काम करने के लिए कितना labor है हमारे पास, and last mobility of the peasants, वो कितना ज्यादा travel कर सकते हैं, कितना ज्यादा काम कर सकते हैं. तो primary purpose, पहला पर्पस क्या था, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लोगों को खाना खिलाना, उनका खुद का पेट भरना चाहिए सबसे पहले. एंड कुछ इसीलिए स्टेपल डाइट ग्रेन्स कल्टीवेट हुई. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मिलेट्स, ये फ्रीक्वेंटली कल्टीवेटेड क्रॉप्स हुआ करती थी. फिर बात करें मॉनसून्स की, मॉनसून्स रिमेन एट द बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर. आज भी मैक्सिमम मॉनसून पे ही हमारा एग्रीकल्चर क्या है, डिपेंड है. सो इरिगेशन से ज्यादा मॉनसून पे ही डिपेंडेंट रहते हैं. बट देयर वर क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन हैज टू बी डिवाइस्ड फॉर दिस. कुछ क्रॉप्स जैसे राइस और शुगर केन जैसी क्रॉप्स होती हैं, इनके लिए हमें भारी मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए. So in northern India, the state undertook the digging of new canals, also repaired the old ones, like in the Shah Nehar in the Punjab during the Shah Jahan's reign. So northern India में canals बनाए गए ताकि irrigation को अच्छे से क्या करें, carry out किया जाए. So these were the irrigation and technology used by the peasants. Yeah. तो एग्रीकल्चर क्या था, लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर हमें एग्रीकल्चर में आज भी भारी मात्रा में चाहिए. पेजेंट्स डिड यूज टेक्नोलॉजीज ऑफन हार्नेस द कैटल एनर्जी. एक एग्जांपल टेक्नोलॉजी का हमें वुडन प्लॉ का मिलता है, which was light and easily assembled with an iron tip or culter. ड्रिल हो गया, ऑक्सिन हो गया, सीड्स को प्लांट करने के लिए यूज हुआ. Then hoeing and weeding, they were done simultaneously with using a narrow iron blade and a small wooden land. So straight away question आ सकता है कि what were the irrigation technologies used by the peasant? Straight away 4 marker. So these are the points that you have to write in your answer. तो ये points आपके answers में mention होने ही चाहिए, otherwise marks कट सकते हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 16 एंड 17 सेंचुरी की बात करें, उसको हमने 2 साइकिल्स में डिवाइड करा. आइए देखते हैं, एक तो खारिफ सीजन और दूसरा द राबी सीजन. सो दिस वुड मीन दैट द मोस्ट रीजन्स प्रोड्यूस्ड अ मिनिमम ऑफ 2 क्रॉप्स. 2 सीजन्स को मैं डिवाइड कर लिया, तो फर्स्ट 6 months राबी एंड द नेक्स्ट 6 months खारिफ, लाइक दैट. Some however rainfall and irrigation assure continuous supply of water. So
इसी वजह से 3 क्रॉप्स भी कभी कभी ग्रो होती थी, कल्टीवेट होती थी। मुगल प्रोविंसेस आगरा की बात करें, वहां पे मिनिमम 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स देखने को मिली। दिल्ली में 43 क्रॉप्स देखने को मिली इन ही 2 सीजन्स में। बंगाल में 50 वेराइटीज ऑफ राइस, केवल चावल की ही 50 वेराइटीज हमें कल्टीवेट देखने को मिली। इसलिए बंगालीज की आज भी वो स्टेपल डाइट, राइस उनकी स्टेपल डाइट का पार्ट है रादर देन व्हीट। तो फोकस ऑन द कल्टीवेशन वाज बेसिक स्टेपल्स सच एज राइस हो गया, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, दीज वर द बेसिक स्टेपल डाइट्स, तो ये लोग कंज्यूम करते थे। मुगल स्टेट ऑल्सो encouraged peasants to cultivate cash crops. कुछ कैश क्रॉप्स आ गई। कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर सेल एंड वो कमर्शियली बहुत यूज होती हैं, लाइक कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, शुगर केन, जिससे हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। सो कैश क्रॉप्स जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है एंड ये कमर्शियली सेल होती हैं एंड दैट्स वाई ज्यादा पैसे देकर ये सेल होती हैं, तो इनका रेवेन्यू ज्यादा था। अब बात करेंगे 17th सेंचुरी की। कुछ न्यू क्रॉप्स आई इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फॉर एग्जांपल, मक्का वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय अफ्रीका के थ्रू एंड स्पेन बाय द 17th सेंचुरी। एंड आज की तारीख में मक्का इज वन ऑफ द मेजर स्टेपल डाइट इन द वेस्टर्न इंडिया। अगर हम बात करें, tomatoes, potatoes, chilies were introduced from the new world at this time as fruits like pineapple and papaya. So कुछ हमने इनग्रोन थी एंड कुछ क्या थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय द अदर वर्ल्ड, जिसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड। अब कास्ट की बात करें, कास्ट एंड रूरल सेटअप एट दैट टाइम डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ कल्टिवेबल लैंड। कुछ कास्ट ग्रुप होते थे जिनको सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए ही रखा गया था एंड जिसकी वजह से दे गॉट इंडल्ज्ड इन मोर पॉवर्टी। कुछ ग्रुप्स कंप्राइज अ लार्ज सेक्शन ऑफ विलेज पॉपुलेशन एंड उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थी। दे वर कंस्ट्रेन्ड बाय देयर पोजीशन, कि उनकी पोजीशन की वजह से उनको अलाउ नहीं था कि वो कोई सर्टेन टास्क और अपनी मर्जी के खिलाफ परफॉर्म कर सके। तो लाइक दलित्स, मुस्लिम के लिए बात करें तो हलाल खुरन, दोज हु कट द मीट वर हाउस्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज। ऐसी कम्युनिटीज जो मीट्स को काटते थे उनको बोला गया कि आप अपने घर विलेज के बाहर बनाइए। सिमिलरली मल्लाजहाद एंड बोटमैन इन द बिहार, उनको स्लेव्स का दर्जा दिया। So there were direct correlation between the caste poverty and the social status at the lower strata of the society. मारवाड़ की बात करें, राजपूत को peasants का दर्जा दिया गया, sharing the same space with the Jats who were accorded as the lower status in the caste hierarchy. Then Kauravas who cultivated the land in UP sought Rajput status in the 17th century. Then some castes like Ahirs, Gujars, Maliros in the hierarchy because of profitability of the cattle rearing in horticulture. तो इनको गुजर्स को, अहीर्स को अच्छा दर्जा दिया गया क्योंकि इनके पास कैटल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। देन ईस्टर्न रीजन की बात करें, फिशिंग कास्ट एंड इंटरमीडिएट pastoral like Sadgobs and Kavrats, they acquired the status of the peasants. So this was the caste. What according to the caste आपको क्या दर्जा दिया गया था at that time? तो पंचायत एंड द विलेज हेडमैन की बात करें, पंचायत, विलेज पंचायत पे स्ट्रेट अवे 8 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन आता है कि फंक्शनिंग ऑफ द विलेज पंचायत एट दैट टाइम। तो विलेज पंचायत क्या थी, असेंबलीज ऑफ द एल्डर्स। तो यहाँ पे मिक्स्ड कास्ट विलेजेस थे, ये पंचायत का पार्ट बने थे। पंचायत वाज यूजुअली अ हेट्रोजेनस बॉडी, हेट्रोजेनस कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। So these represented various castes and communities in the village. तो इसको oligarchy बोला गया। Oligarchy is a condition where it is ruled by few people. So it was a headman. It was headed by a headman, जिसको मंडल या मुकदम बोला गया। कुछ sources बताते हैं कि headman was chosen through the consensus, कि village में रहने वाले लोगों की आपसी सहमति से वो मंडल चूज हुआ था, ठीक है। एंड दिस चॉइस हैड टू बी रैटिफाइड। तो इसको कंफर्म कौन करेगा, इसको जमींदार कंफर्म करेगा। चूज करेंगे विलेज मैन और उसको कंफर्मेशन कौन देगा, आपका जमींदार। तो इनका जो ऑफिस था ये कब तक एंजॉय कर सकते थे, एज द कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। अगर विलेजर्स ने मना कर दिया कि आप हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, तो कभी भी उनको अपने थ्रोन से गिराया जा सकता है।
So the panchayat derived its funds. अब funds पैसे कहाँ से आते थे? Contribution made by the individual to the common financial pool. So लोग आपस में मिलकर क्या करते थे? Pool in करते थे and ऐसे ही पंचायत function होती थी. अब बात करेंगे functions कि क्या what were the other functions that were performed by the panchayats? Village headmen supervise the preparation of the village accounts assisted by an accountant. तो accountant क्या करता था और पटवारी क्या करते थे? इस financial चीजों को देखते थे. फिर पंचायत हैड टू अंडरटेक द वेलफेयर मेजर्स. अब मेन काम तो यही होता है. इट पंचायत इज बेसिकली लोकल लेवल की गवर्नमेंट और अल्टीमेट एम क्या है स्टेट का? टू डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. कैसे करा? कैनाल बना के, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांध विच peasants usually could not afford to do their own. Obviously इसमें इतना सारा पैसा लगेगा, लैंड लगेगा, तो peasants अकेले नहीं कर सकते. तो ऐसे ही नेचुरल कैलामिटीज से बचने के लिए, फ्लड और फैमिन से बचने के लिए भी पंचायत ने कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे थे. So one most important function of panchayat was to ensure that caste boundaries among the various communities inhabiting the village was upheld. And ईस्टर्न इंडिया में जितनी भी मैरिजेस थी वो मंडल या तो हेडमैन के प्रेजेंस में ही होंगी. पंचायत ऑल्सो हैड द अथॉरिटी. ये फाइन्स भी लगा सकते हैं अगर किसी ने कुछ क्राइम कर दिया. कुछ और पनिशमेंट्स भी थी, जैसे आपको कम्युनिटी से ही बाहर निकाल दिया अगर आपने कोई क्राइम कर दिया. देन कम्स इट व्हेन द पर्सन इज फोर्स्ड टू लीव एंड बिकम एन आउटकास्ट एंड लॉस्ट हिज राइट टू प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन. तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना था आपको. इन वेस्टर्न इंडिया की बात करें, लोअर कास्ट ने प्रेजेंट करा पिटिशन कंप्लेनिंग अबाउट द एक्सटॉर्शनेट टैक्सेशन और डिमांड ऑफ अनपेड लेबर विच इज द बेगार. तो सुपीरियर कास्ट क्या करती थी? लोअर कास्ट पे ज्यादा ऑपरेशन और सप्रेशन फेस करा, तो उन्होंने क्या करा? कंप्लेन करा. ये इंस्टेंसेस हमें वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं. In the eyes of the petitioners, the right to the basic minimum for survival was sanctioned by the custom, and they regarded the village panchayat as the court of appeal. तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कहाँ जाएंगे? विलेज पंचायत के पास जाएंगे एंड वो क्या इंश्योर करेगा? दैट यू गेट योर जस्टिस. So decision of the panchayats in the conflicting between the lower caste peasants and the state officials or the local zamindars could vary from case to case. Obviously ये decision vary करेगा case to case पे and सुनवाई पे. And in cases of excessive revenue demands, the panchayats often suggested compromise. तो पंचायत क्या करता था? यूजुअली सेटलमेंट rather than giving the punishment, वो सेटलमेंट मीडिएशन पे बिलीव करता था. तो इन केसेस में रिकंसिलिएशन फेल्ड. ऐसे केसेस में ऐसा तो होता नहीं था कि सारे केसेस में मीडिएशन हो. तो जहां पे ये फेल हुआ, peasants took the recourse to more drastic form of resistance such as deserting the village. अब कुछ एक टर्म आ जाता है जाति पंचायत. जाति पंचायत, जाति को बोलते हैं एक सब कास्ट. तो इन्हीं पंचायत में कुछ सब कास्ट ने अपनी मिल के पंचायत बनाई थी, तो दे हैड इट्स ओन जाति पंचायत. तो राजस्थान में जाति पंचायत आर्बिट्रेटेड सिविल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट कास्ट. तो इनकी जरूरत कब पड़ी? जब उनको प्रॉपरली जस्टिस नहीं मिला, उनकी किसी ने सुनी नहीं, तो उन कास्ट के लोगों ने, कास्ट के अंदर जो सब कास्ट आती है, मिलकर अपनी एक खुद की पंचायत बनाई टू इंश्योर जस्टिस, टू इंश्योर वेलफेयर. उसको बोलते हैं जाति पंचायत. तो वो क्या करते थे? दे मीडिएटेड इन कंटेस्टेड क्लेम्स ऑन लैंड, डिसाइडेड वेदर मैरिजेस वर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स लेट डाउन बाय द पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, डिटरमाइंड हु हैड द रिचुअल प्रेसिडेंस इन द विलेज फंक्शन एंड सो ऑन. काफी केसेस में एक्सेप्ट इन द मैटर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस द स्टेट रिस्पेक्टेड द डिसीजंस ऑफ द जाति पंचायत. अब बात करते हैं लिटिल रिपब्लिक. इट्स अ स्ट्रेट अवे PYQ. ये 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है. Some British officials in the 19th century saw the village as the little republic. क्योंकि villages they were made up of fraternal partners of sharing resources and labor collectively, and इनको they were not assigned of the rural egalitarianism. So basically republic का मतलब होता है when you choose your head of the state, people have power to choose their head of the state either directly or indirectly. और village पंचायत में क्या होता था? They used to choose their representatives. तो इसलिए उसको लिटिल रिपब्लिक का नाम दिया गया. अब बात करेंगे रोल प्लेड बाय द वुमेन. स्ट्रेट अवे PYQ 8 मार्कर में पूछा जा सकता है एंड ये बहुत बार पूछा भी गया है कि व्हाट वर द रोल प्लेड बाय वुमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी अंडर द मुगल रूल. अब इसमें तो हमने पेजेंट्स की बात करी, विलेज की बात करी, फंक्शनिंग की बात करी, वेलफेयर की बात करी. अब उस पूरे सिनेरियो में
विमेन का क्या रोल था, उन्होंने क्या करा, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, वुमेन क्या करती थी, दे यूज टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद मेन इन द फील्ड्स, बिल्कुल मेंस के साथ ही वो काम करती थी। देन कुछ ने सोइंग करी, वीडिंग करी, थ्रेशिंग करी, विनोइंग करी, द हार्वेस्ट, दीज मेथड्स आर रिलेटेड विद द क्लीनिंग ऑफ द हार्वेस्ट जो प्रोड्यूस है। फिर न्यूक्लिएटेड विलेजेस आ गए, फिर expansion of peasant farming on the basis of production was the labor and resources of the entire household। लेकिन इस टाइम पे बायोलॉजिकल फंक्शंस में बायसनेस हमें देखने को मिले। फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फॉर इंस्टेंस दे वर नॉट अलाउड टू टच द प्लॉ। अब बात आई जाती है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीजन, कुछ वुमेन जो मेंस्ट्रुएट करती थी उनको टच करने के लिए, उनको जो प्लॉ है वो टूल टच करने के लिए भी मना कर दिया गया, और ये कहाँ देखने को मिला, वेस्टर्न इंडिया में। देन कुछ आर्टिसनल टास्क हो गए, स्पिनिंग यार्न, सिफ्टिंग, नीडिंग, पॉटरी, एम्ब्रॉयडरी, ये क्या करते थे, फीमेल लेबर पे भी। तो आज की तारीख में भी ये जितने भी आर्टिसनल काम है मेजॉरिटी आपको फीमेल्स ही करती हुई दिखाई देंगी। फिर बात करें पेजेंट्स एंड आर्टिसन, वुमेन वर्क नॉट ओनली इन द फील्ड्स बट इवन वेंट टू द houses of their employees or to the market if necessary। Women were considered an important resource in the agrarian society because they were the child bearers in the society, and उनको चाइल्ड बियरर का दर्जा दिया गया, एंड वो क्या करेंगे, एज अ चाइल्ड बियरर दे आर सपोज्ड टू प्रोड्यूस मोर लेबर। एट द सेम टाइम हाई मोर्टालिटी रेट्स भी थी वुमेन में, क्यों, रीजन था मालन्यूट्रिशन की वजह से, बार बार प्रेगनेंसीज की वजह से, एंड डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जिसकी वजह से हमें शॉर्टेज ऑफ वुमेन भी देखने को मिली थी। ठीक है, इन्हीं वुमेन की कमी की वजह से वुमेन की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से न्यू सोशल कस्टम्स देखने को मिले, एंड मैरिजेस इन मेनी रूरल कम्युनिटीज रिक्वायर द पेमेंट ऑफ द ब्राइड प्राइस रादर देन द डाउरी टू द ब्राइड्स फैमिली। तो उल्टा होता था, दैट इफ यू आर गेटिंग मैरिड टू अ वुमन यू हैव टू पे हर, सो इट वाज द रिवर्स डाउरी काइंड ऑफ अ थिंग। Remarriage was considered legitimate among both divorced and widowed women, तो उस टाइम पे remarriage was allowed, and so the importance attached to the women are as productive forces also meant that the fear of losing control over them was great। ठीक है, according to the established norm, कुछ certain norms के accordingly household was headed by male, so कहीं ना कहीं हमें patriarchal society ही देखने को मिलती है। Thus women were kept under the strict control by the male members of the family, and the draconian punishments were given if suspected infidelity on the part of the woman। If the woman is doing something wrong, ट्रस्ट नहीं हो रहा, लॉयल्टी नहीं है, तो उनको काफी खतरनाक पनिशमेंट भी दी गई। So they sent petitions, women sent petitions to village panchayat seeking to redress and justice। Wives protested against the infidelity of their husbands। तो कुछ husbands loyal नहीं थे तो उनके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। Or the neglect of the wife and the children by the male head of the household। So this was the role played by the women during the Mughal rule। So this was all about the part 1. Other part we are discussing will be discussed in the part 2. Until then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes, dedicated to excellence.